Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our chapter number 3 with the new topic, that is entering data in a cell as well as select the particular cell, right? So in the previous lecture we have learned about the basic theoretical concept like a spreadsheet, worksheet, workbook, and how to work with Excel. This kind of basic thing we have learned, as well as we have also learned about how to save the Excel document, right? So आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, we will learn how to enter the data in a cell. इस सेल के अंदर आपको डेटा कैसे एंटर करना है, एंटर किए हुए डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन आप कैसे कर सकते हो, और the third thing we will learn, that is about the selection process, that there are multiple ways to select a particular cell or to select a range of cells. So that thing we will learn within this lecture. So today the first topic, that is entering data in a cell. So to enter the data in a particular cell, you will have to click on the particular cell. आपको जो है ना ये particular cell को ऐसे क्लिक करना है सिलेक्ट करने के लिए. सपोज मुझे यहाँ पर पहले सेल में ही डेटा एंटर करना है, so I can click over here. इस सेल का एड्रेस क्या हुआ A1, और यहाँ पर मुझे कुछ टाइप करना हो तो आई कैन डायरेक्टली टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड से मैं डायरेक्टली टाइप करूंगा तो यहाँ पर डेटा जो है वो रिटर्न हो जाएगा. Once you type the data, you can click on this symbol. This is enter key, right? Either you can click over here or you can click on enter key from your keyboard. कीबोर्ड में से भी आप एंटर की प्रेस कर सकते हो. So ये डेटा जो है वो आपका ओके हो जाएगा, right? Sometime if you would like to type your data, suppose मैं यहाँ पर डेटा टाइप करता हूँ और ये डेटा बाय मिस्टेक मैंने रॉन्ग टाइप कर दिया है, तो मुझे इस डेटा को कैंसिल करना है, तो व्हाट आई विल टू क्लिक, I have to click on this cross button. It is a cancel button. Once you click here, your data will be removed automatically, right? अगर आपको यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक नहीं करना है तो कीबोर्ड में से आप एस्केप की भी प्रेस कर सकते हो. Once you press the escape key, it will remove the entered data. इस डेटा को ये रिमूव कर देगा. या तो आप नॉर्मली यहाँ पर डेटा टाइप कर एंटर की प्रेस कर सकते हो if you would like to remains your data within the cell. Right, so this is the way through which you can type the data within any Excel, right? Any cell, किसी भी सेल में आप ऐसे डेटा टाइप कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर मुझे डेटा टाइप करना है ABCD. If I click over here, it will remains as it is. यहाँ पर मुझे टाइप करना है suppose XYZ, and if I would like to remove this thing, so I can click on the cancel button. So ऐसे वो डेटा जो है वो remove हो जाएगा, right? So this is the way through which you can type the data within any particular Excel cell, right? अभी यहाँ पर जो है ना मेन हमने यूज, मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि what is the use of Excel. The main use of Excel is that you can prepare any particular sheet. Normally, if I'd like to give you an example, then you can prepare any mark sheet in a Excel. आप Excel में किसी भी मार्क शीट को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो. सो मैं जो है ना वो सभी स्टूडेंट की एक कॉमन मार्कशीट यहाँ पर टाइप करता हूँ. फॉर एग्जांपल इनिशियली आई विल हैव टू गिव ओवर हियर, मुझे यहाँ पर क्या देना होगा, पहले हेडिंग, राइट? तो हेडिंग में यहाँ पर देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट. देन आई कैन डायरेक्टली गिव एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेम. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सब्जेक्ट नेम में देता हूँ इंग्लिश सेकेंड, दैट इज सपोज मैथ्स. अभी देखो इस टैब में मैं हूं ना, तो मुझे ये नेक्स्ट टैब में जाना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे क्लिक तो कर ही सकता हूँ, और दूसरा भी एक ऑप्शन है नेक्स्ट सेल में जाने का. यहाँ पर मैं जो है ना वो थर्ड सब्जेक्ट टाइप करता हूँ. अभी कीबोर्ड में टैब नाम की एक की है, TAB. वंस यू क्लिक ऑन द टैब की, इट विल मूव टू द नेक्स्ट सेल, राइट? राइट हैंड साइड में जो नेक्स्ट सेल होगा वहां पर ये कर्सर को मूव कर देगा. और यहाँ पर जो है ना मैं एक और सब्जेक्ट टाइप करता हूँ, दैट इज साइंस. Getting? This is our particular 4 subject, right? We have entered over here 4 subject. यहाँ पर मैं स्टूडेंट के नेम टाइप करता हूँ, जैसे कि राजेश, महेश, सुरेश, अंकिता, केवल, केयूरी. ओके, सो मैंने जो है यहाँ पर 5 स्टूडेंट के नेम अभी एंटर किए. देन हियर आई विल हैव टू एंटर द मार्क ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. यहाँ पर जो है ना मैं मार्क एंटर करता हूँ
और मार्क जो है वो आउट ऑफ 100 यहाँ पर एंटर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 77, मैथ्स में सपोज 89, हिंदी में सपोज 88, साइंस में सपोज 57। दिस इज द रैंडम मार्क। ये जो है ना वो मैं रैंडम यहाँ पर मार्क सभी स्टूडेंट के एंटर करता हूँ। मार्क एंटर करने के लिए यू कैन यूज द नम पैड फ्रॉम योर कीबोर्ड। कीबोर्ड में नम पैड है, वहां पर से आप सीधे मार्क एंटर कर सकते हो। यहाँ पर सपोज 45, 65, हिंदी में सपोज 55 एंड साइंस में सपोज 40। सुरेश के मार्क एंटर करते हैं। सपोज 44 सुरेश, 54 इन मैथ्स, 67 इन हिंदी एंड साइंस में 55। अंकिता के मार्क सपोज 47, 64, 56, 34 and last one is the KUD 66, 56, 74, 59. So this is my mark I have entered in a particular sheet. बट यहाँ पर जो है ना एक मार्कशीट हमारी स्टूडेंट की अभी प्रिपेयर हो गई। So now what we will going to learn that how to select a particular cell or how to select a range of cell. आप जो है ना सेल को रेंज में कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ। सो दैट फॉर एग्जांपल मुझे ये सारा पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, तो व्हाट आई विल हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ओवर हियर। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद अपने माउस के अंदर जो लेफ्ट क्लिक है उस लेफ्ट क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे प्रेस करके ही रखूंगा और माउस को क्या करूंगा, ड्रैग। आई कैन ड्रैग माई माउस इन अ पर्टिकुलर रेंज। में माउस को जो है ना वो लास्ट तक ऐसे ड्रैग करूंगा और लास्ट में मैं माउस को ऐसे लीव कर दूंगा, फिर छोड़ दूंगा। तो ऐसे आप जो है ना सेल की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ऐसे आप जो है वो सेल की रेंज जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। Getting? So this is the normal way to select all the cell. Again I can select a particular one subject. So यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माउस को ड्रैग करूँगा, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके ही रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ पर मैं माउस की लेफ्ट क्लिक को भी छोड़ दूँगा, राइट। सो ऐसे आप जो है वो सेल की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। अभी एक रेंज सिलेक्ट हो गई, मैं यहाँ पर दूसरी रेंज भी ऐसा करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। दिस इज द फर्स्ट वे दैट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सेल रेंज। आप ऐसे जो है वो सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। पहला चीज हमने क्या देखी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट सेल रेंज। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न। नाउ सेकंड थिंग, दूसरी चीज हम क्या लर्न करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली, राइट। सिलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली, राइट। सिलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली। अभी अब हम क्या करेंगे, दो रेंज को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रेंज हुई पहली और ये रेंज हुई दूसरी। अभी आप देखोगे तो ये रेंज मैंने सिलेक्ट की, ओके, तो ये हो गई। फिर ये रेंज जब भी मैं सिलेक्ट करने जाऊंगा ना, तो पहली रेंज सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा, राइट। बट मुझे मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट करना है, तो मल्टीपल रेंज एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर फर्स्ट रेंज। आप ऐसे पहली रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, देन यू कैन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट अनदर रेंज ऑफ सेल। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस करके रखो, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसे छोड़ना नहीं है, और दूसरी रेंज को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है, राइट। तो अभी आप देखोगे कि दोनों रेंज सिलेक्टेड है, राइट। अगर आप क्लियरली इसे देख पा रहे हो तो यहाँ पर दोनों रेंज में क्या है, सिलेक्शन है, और दोनों रेंज थोड़ी डार्क में हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डार्क सिलेक्शन रेंज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। सो ये दोनों पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल सिलेक्टेड है। अभी मैं यहाँ पर बोल्ड करूंगा, सपोज मैं बी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो आप दोनों रेंज बोल्ड सिलेक्ट हो गई। आई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोनों रेंज इटालिक हो गई। यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोनों रेंज में अंडरलाइन हो गया।
ये मैंने इसीलिए किया कि आपको पता चले कि ये दोनों रेंज अभी सिलेक्टेड है। अगेन दूसरी चीज फिर से ये देखते हैं कि कैसे किया मैंने। सिंपल, आपको क्या करना है, पहली रेंज को पहले सिंपली लेफ्ट क्लिक माउस की प्रेस कर ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। फिर आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, कंट्रोल की कीबोर्ड में आती है, उसे प्रेस करके रखनी है। और फिर से आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को सिलेक्ट करके इसे ऐसे ड्रैग करना है एंड देन आपको सभी क्लिक को छोड़ देना है। तो ये दोनों रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट हो गए। फिर आप किसी भी इफेक्ट को अगर परफॉर्म करोगे तो दोनों सिलेक्टेड रेंज में ये परफॉर्म हो पाएंगे। सो ऐसे आप जो है वो सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल सेल रेंज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे आप जो है वो मल्टीपल सेल को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। Now just removing this bold effect and I click over here. This is the second type that we have learned, right? Select multiple range simultaneously. One by one you can select multiple range. Now third type of selection that we are going to learn, that is extending a selection. Extending selection, right? Selection को कैसे extend करें, that we are going to learn. तो सिलेक्शन को एक्सटेंड कैसे करें, मतलब बढ़ाए कैसे, राइट? सिलेक्शन को नॉर्मली आप कैसे बढ़ा सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा कि पहले जो है वो आपको किसी भी एक सेल को ऐसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम सेल को सिलेक्ट किया, राइट? फिर आपको जो है वो इसकी कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है, राइट? आपको इस सेल की कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो है वो क्या करना है, प्रेस करना है कीबोर्ड में से F8 की। राइट, आपको F8 की प्रेस करना है और आपको इसे ऐसे जो है वो पर्टिकुलरली ड्रैग करना है। एक बार आपने यहां से F8 की प्रेस कर दी, आपको नॉर्मली जो है यहाँ पर कर्सर आपका रखना है, पहले सेल को सिलेक्ट करना है, फिर आपको कीबोर्ड में से ना F8 की को प्रेस करना है। क्या करोगे आप, कीबोर्ड में से F8 की को प्रेस करोगे। जब भी आप F8 की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सटेंडेड सिलेक्शन ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको जो है ना वो डायगनली, मतलब यहाँ से लेकर ऐसे क्रॉस में सभी सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर माउस को यहाँ से जो है वो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एरो की मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ। और ये देखो आप जो है ना ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो कर सकते हो एक्सटेंडेड सिलेक्शन करके। पर ये क्या हुआ, मल्टीपल सिलेक्शन हुआ। मैं ऐसे मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही अगेन मैंने F8 को प्रेस किया तो यहाँ पर एक्सटेंडेड मोड जो है वो निकल जाएगा। फिर जो है वो पर्टिकुलरली डायगोनल में सिलेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो क्या करना होगा, F8 की को आपको प्रेस करना होगा, देन यू कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग बाय दिस वे। इसे आप ऐसे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो नॉर्मली, राइट? तो ये बात हुई एक्सटेंडेड की। इसे आप क्या कहोगे, एक्सटेंडेड मोड आप कह सकते हो, राइट? तो ऐसे जो है वो आप एक्सटेंडिंग सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, राइट? So this is the third way to select the particular cell with the help of extended selection. यहाँ पर extended selection आ गया होगा तो उसे आप रिमूव कर सकते हो। Again you can click F8 की, राइट? So ये जो है वो अभी चला जाएगा। So this is the type of selection. अभी जो सिलेक्शन अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है सिलेक्ट पर्टिकुलर फुल रो। मतलब आप रो को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर सेल को, राइट? बट मुझे पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, आई कैन क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर रो नंबर। सपोज ये रो नंबर 3 है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, राइट? यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रो बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन अ नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जिस भी रो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये रो पर्टिकुलरली सिलेक्ट हो जाएगी। मुझे पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करनी है, आई वुड लाइक टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई कैन क्लिक ऑन एनी कॉलम नंबर। ये कॉलम के नंबर्स है ABCD।
तो जिस भी नंबर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सपोज मैं बी के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो ये बी वाली पूरी कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इफ आई वांट टू क्लिक ऑन द ई कॉलम, तो ये ई वाली कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएगी। राइट, ऐसे आप जो है वो कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ मल्टीपल रो, अगर आपको मल्टीपल रो सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, आपको जो है वो सपोज मैंने पहली रो सिलेक्ट की, अभी मुझे दूसरी रो भी करनी है, तो मैं कीबोर्ड में माउस में से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा और माउस को नीचे ड्रैग करूंगा, तो दूसरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगेन आई कैन ड्रैग द माउस टू दिस पर्टिकुलर रो। सो ऐसे जो है ना वो माउस की मदद से आप मल्टीपल रो को सिलेक्ट कर सकते हो। क्या किया मैंने, पहले दूसरी रो को सिलेक्ट किया, फिर माउस में से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ही रखी, मैंने लीव नहीं की, उसके बाद माउस को नीचे ड्रैग किया। राइट, सो आई कैन सी द मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ रोज। इफ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम, आपको मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करनी है, तो अगेन आपको पहली कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। राइट, सिलेक्शन छोड़ना नहीं है, फिर आपको जो है वो सिलेक्शन को करके ही रखना है, लेफ्ट क्लिक को, फिर आपको माउस को ड्रैग करना है, एंड यू कैन एट लास्ट लीव द माउस, सो यू कैन सी द मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ अ कॉलम इज परफॉर्म्ड ओवर हियर। राइट, ऐसा मल्टीपल कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर अगेन मैं दूसरी रो को सिलेक्ट करता हूँ। राइट, फिर आई कैन क्लिक ऑन द कंट्रोल की को प्रेस करके रखता हूँ और कॉलम रो नंबर 4 को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये दोनों रो सिलेक्ट हो गई। राइट, यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में थोड़ा ये ब्लर आ गया है यहाँ पर बैकग्राउंड में, मतलब ये दोनों रो सिलेक्टेड। अगेन आई वांट टू सिलेक्ट द थर्ड स्पेसिफिक रो, ये 6th वाली रो मुझे सिलेक्ट करनी है, तो आई कैन प्रेस कंट्रोल की और आई कैन क्लिक ओवर हियर, तो ये तीसरी रो भी यहाँ पर सिलेक्ट होगी, और सिलेक्टेड रो जो भी होगी वो यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड रो सिलेक्टेड, 4th रो सिलेक्टेड एंड 6th रो सिलेक्टेड, रिमेनिंग आर इन व्हाइट, सो दे आर नॉट सिलेक्टेड। राइट, सो ऐसे मल्टीपल रोज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना है तो भी सेम प्रोसेस, you can click on a particular column, then press control key, again click on the another column, then again click on the plus key, again click on the third specific column। तो ये दोनों कॉलम और ये डी वाली कॉलम, ये तीनों कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गई, यहाँ पर डार्क ब्लू आ गया, मतलब दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कॉलम इज सिलेक्टेड। तो ऐसे जो है वो आप रो एंड कॉलम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, दिस इज द स्पेसिफिक way through which you can select a particular row and you can select a particular column। ऐसे आप जो है वो particular row and particular column को select कर सकते हो। So this is the basic thing that how to select a row and how to select a column। किसी भी सेल को सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्टली सेल के ऊपर ऐसे आप क्लिक करो, मतलब सेल सिलेक्ट हो जाएगा। सेल को जो है वो थोड़ा एक्सटेंड करना है, मतलब कि यहाँ से सिलेक्ट कर ये दोनों को सिलेक्ट करना है, तो आप तो कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। यू कैन प्रेस शिफ्ट की, कीबोर्ड में से शिफ्ट की प्रेस करके रखो और एरो में से राइट एरो अगर आप प्रेस करोगे तो ये मल्टीपल जो है वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। कीबोर्ड में से यहाँ पर सपोज इस सेल के नीचे का सेल मुझे सिलेक्ट करना है, तो यू कैन प्रेस शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द डाउन एरो फ्रॉम योर कीबोर्ड, तो ऐसे आप जो है मल्टीपल सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन सिलेक्ट अ मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम। राइट, सो दिस इज द बेसिक थिंग। ये जो है वो हमने बेसिक चीज के बारे में अभी लर्न किया। राइट, कि आप कैसे एक्सेल के अंदर पर्टिकुलर सिलेक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर दिस। राइट, इस चैप्टर के बारे में जो हमने लर्न किया वो इतना ही था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट द ट्रिकी टर्म एंड मेमोरी बाइट्स। अभी जो है वो हम ट्रिकी टर्म और मेमोरी बाइट्स के बारे में लर्न करेंगे। सो दैट आई नीड टू ओपन योर कंप्यूटर बुक। सो दिस इज द ट्रिकी टर्म and memory bytes of this chapter. So let's quickly complete this particular terms. First thing is that the cell is the smallest unit of your worksheet. Format formed by the interaction of row and a column, numbers, tags, formulas, etc. can be entered in a cell. Right? So ये जो छोटा वाला particular portion है उसकी definition यहाँ पर दी गई है. This is known as the cell. Second thing is that cell pointer.
It is a highlighted cell boundary that specifies which cell is active at that moment. Right? So this particular thing, ये जो आप square जो selection देख रहे हो इसे कहते हैं cell pointer. Next thing is that workbook. Workbook a basic file in a spreadsheet. Right? ये जो files है, this is a particular sheet which is known as a workbook. Next thing is that worksheet. A grid of cells made up of rows and columns, which is known as worksheet. मतलब ये particular जो grid of cells है, which is known as worksheet. Right? Next there is contiguous. Contiguous means connecting or touching or specifying along a line, which is known as contiguous. This particular thing, this is the contiguous contiguity of a cell, right? Next thing is a range. Range का मतलब a rectangular box of contiguous cells, right? ये जो है ना वो cell की range हुई. Suppose I click over here, this is my cell range. तो इतने range में जो है मैंने cell को select किया, which is known as cell range. Next thing, memory bytes contains some of the important or components of MS Excel window. पहली लाइन जो है वो है a new MS Excel workbook contains 3 worksheet by default, right? 3 worksheet by default आती है जिसका नाम है sheet 1, sheet 2 and sheet 3. Second thing is that an MS Excel worksheet has 65,536 row. Total कितनी रो आती है? 65,536. And how many columns? 256 columns are there. Right? ये MCQ के अंदर क्वेश्चन आएंगे. Rows are numbered 1, 2, 3 up to 65,536. ये जो है नंबर ऑफ रोज है. कॉलम्स कितनी होगी? कॉलम जो है वो 256 बट कॉलम जो है वो ABCD के अंदर टाइप होगी. ABC से लेकर लास्ट में IV. राइट? IV ABCD का कॉम्बिनेशन. Next, the type of data that can be entered in a MS Excel worksheet are number, text और formula. 3 टाइप के आप डेटा इस सेल के अंदर टाइप कर सकते हो. Next, selecting a range of cell. या तो आप जो है वो शिफ्ट के साथ स्पेस बार की को प्रेस कर जो है वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार की सिलेक्ट कर रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करते हो, या तो आपको पूरे शीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A प्रेस कर पूरी शीट सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि मुझे ये पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो आई कैन प्रेस कंट्रोल A. तो कंट्रोल A सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरी शीट जो है सिलेक्ट हो जाएगी. दिस इज द सिलेक्शन गॉन. कंट्रोल A सिलेक्ट्स द फुल शीट. राइट? सो वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर नंबर 3 over here. We will meet in the next lecture with the new chapter, that is chapter number 4. आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं.